Hi everyone. Today I'm gonna talk about types of questions. There are different types of questions, and there are three reasons, very significant reason to learn these things. First, when you will learn about the types of question, it will be easier for you to communicate your ideas in different manners. Second, when you will learn about the question, it will be easier for you to punctuate anything. You can understand if you need any punctuation mark or not. Third one is that by learning these type of things, automatically you will learn the various uses of auxiliary verb. When the auxiliary verb change its place, you will learn whether it is direct, it is indirect, or it is a statement, or what type of thing is that. That will surely increase your confidence. Let's talk about questions. There are different types of questions, and sometimes their answers are expected. It depends on the nature of the question, or sometimes they are just question without expectation of any answer. So, and whether it is a statement or a question, you can see through the question mark or full stop. Usually a full stop is used to indicate the end of a sentence. However, if the sentence is a question rather than a statement, it should end with a question mark. So let's learn, where should we use full stop or where should we use question mark. Before going into detail, let's see what type of questions we have. First question type is general or yes no questions. We will talk about in detail on other slide. Next is direct questions, subject questions, alternative questions, tag questions, or mini tail questions. Or last one is indirect questions. First type of question is general or yes no question. When you ask a question or just another person, it is enough if he say yes or no. अब इसे सवाल को देखें, do you want to be a teacher? First of all, focus your attention on the first word of the sentence, do. It shows that it is auxiliary verb, or when a sentence start with an auxiliary verb, it must be a question, or it should be end with question mark. और इसका जवाब देखिए, yes I do. अगर आप सिर्फ ये कह दें कि yes तब भी सही है, अगर आप I do कह दें तो भी सही है. इसके अलावा भी अगर आप कोई एडिशन करना चाहें तो इट डिपेंड्स ऑन यू. यानी इस तरह के सवालात दे एक्सपेक्ट आंसर, और इनमें क्वेश्चन मार्क लगा होना बहुत जरूरी है. अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, इट मीन यू आर डूइंग रॉन्ग. नेक्स्ट एग्जांपल इज, आर यू लिविंग नियर बाय? यस आई डू. आर यू कमिंग टुडे? नो आई एम नॉट. विल यू हेल्प मी? यस, व्हाई नॉट. डिड यू लाइक हर न्यू ड्रेस? यस आई डिड. अब ये भी आपको अपनी नजर में रखना है कि जो सवाल में आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, दैट मस्ट बी शोन इन योर आंसर. जैसे कि हमने कहा आई डू, और फिर हमने आखिरी क्वेश्चन में कहा यस आई डिड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हियर द डायरेक्ट क्वेश्चंस. Direct question can be divided into different ones. For example, WH question, or we can also call them special question. Even you can hear lots of names for these questions, but the most important thing for you that you should understand what actually the example of that type of question. It will help you out कि आपको समझ में आएगा कि असल में कहा क्या जा रहा है सवाल में और इसका मतलब क्या है. अब एग्जाम्पलरी वर्ड्स जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में होते हैं या WH क्वेश्चंस में होते हैं, जैसे देखें, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, व्हेन, वेयर, हु, हाउ मच. और इसका सेंटेंस देखें, व्हाट डू यू प्रिफर, टी और कॉफी.
ये इसका सेंटेंस है। आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? WH से। और इसका जवाब दिए बगैर आप नहीं रह सकते। और सवाल, क्योंकि इट स्टार्ट विद WH एंड देन वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब डू, जिसकी वजह से हमें इसके एंड पर एनी हाउ क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। Direct question, a sentence that asks a question and expects an answer in response, is a direct question and requires a question mark. इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि किस तरह का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट नीड्स क्वेश्चन मार्क और इट नीड्स एंड एट द एंड full stop. Next sentence is, what are you planning for? It means you have to answer something. आपको जवाब देना पड़ेगा, बगैर जवाब के काम नहीं चल सकता। और what are, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रुपीज डू यू। अब हमने यहाँ पहले लगाए हैं हाउ मेनी रुपीज, ये सब्जेक्ट है और आप सवाल जो पूछना चाह रहे हैं वो आपका पैसों से मुतालिक है, इसलिए आपका हाउ के बाद फौरन ही ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया, बल्कि वो चीज आ गई है जो आप पूछना चाहते हैं। हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट मी टू गिव यू? कितने पैसे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दूं? अब आप अपनी ही लैंग्वेज में इसको समझें कि क्या ये सवाल है या स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स इट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ फार डू यू वांट टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। तुम इस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ तक जाना चाहते हो? जरूर आप इसका, अगर आपको समझ में ना आए कि वेदर आई शुड पुट क्वेश्चन मार्क और नॉट, तो उस सवाल, उस चीज को अपनी लैंग्वेज में आप सोच सकते हैं कि व्हाट इट एक्चुअली मीन। व्हेन डिड यू लास्ट सी योर चाइल्ड? डू यू नो वाज एनीवन लिसनिंग? क्या तुम्हें पता है कोई सुन रहा था? तो बी वेरी वेरी केयरफुल while you are punctuating क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ इट स्टार्ट्स और हाउ इट एंड्स। सब्जेक्ट क्वेश्चन, such type of questions, a sentence that asks a question and expect an answer, but it always start with who, what. This type of question, it means the subject is required. Who's your mother? अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपकी वालदा कौन है। अब अगर हु की जगह आप अपनी वालदा का नाम दे दे, देन इट्स ओके एंड यू हैव टू रिमूव द क्वेश्चन मार्क। और इसकी भी स्ट्रक्चर को आप देखें, व्हाट के बाद इज लगा हुआ है या कोई ना कोई सवाल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर राइटिंग दिस नॉवेल। इस नॉवेल को लिखने के लिए तुम्हारी इंटेंशन क्या है या मोटिवेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड इट मेक यू फील सो एंग्री। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें इतना नाराज किया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू क्राई। किस चीज की वजह से तुम रो रहे हो। इट मीन समथिंग। फिर एक बात यहाँ कि जब आपको जवाब दरकार हो तभी इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, alternative question very easily you can understand. It means you must have a question but there you will find alternates, यानी आपके पास options होंगे। A sentence that ask a question and expect an answer in response, or when the question provides you options, it is called alternative question. अब आप जैसे ही इन सवालों को देखेंगे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। वुड यू लाइक कॉफी और टी? आप क्या पसंद करेंगे, चाय और कॉफी? यह जाहिर है आपको एक चीज चुनेंगे और जवाब देना बहुत जरूरी है। डू यू वर्क और आर यू अ होम मेकर? आप काम करती हैं या आप घर संभालती हैं। हैव यू बीन टू स्विट्जरलैंड और एनी नॉर्डिक कंट्री? क्या आप स्विट्जरलैंड गई हैं या किसी नॉर्डिक कंट्री गए हैं। वुड यू ईदर प्रिफर टू गोइंग फॉर स्लीप और वॉचिंग मूवी? क्या तुम प्रिफर करोगे सोना या मूवी देखना, यानी अगेन यू हैव ऑप्शन। हैज शी राइट द लेटर और इज शी स्टिल राइटिंग इट?
क्या वो खत लिख चुकी है या अभी तक वो खत लिख रही है? बी वेरी वेरी केयरफुल। इस वीडियो को पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन को गौर से देखें कि कहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है और कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ कौन सी चीज है, और व्हाई वी पुट द क्वेश्चन मार्क। टैग क्वेश्चंस, हम इन्हें मिनी क्वेश्चन और टेल क्वेश्चंस भी कहते हैं। अभी हम बताते हैं कि व्हाई वी कॉल देम लाइक दैट। यू स्पीक हिंदी, डोंट यू? सो when we are talking about the tag question, a tag question is one that can be added to the end of a statement. अब आपके पास स्टेटमेंट क्या है? यू स्पीक हिंदी, डोंट यू? डोंट यू इज अ टैग क्वेश्चन. The speaker prompts the listening to respond in a certain way and then adds the question to the end for confirmation. इस तरह हम यानी एक कंफर्मेशन चाहते हैं और आखिर में हम उसमें क्वेश्चन लगा देते हैं। यहाँ भी आप पंक्चुएट करते हुए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि आखिर में क्वेश्चन है टैग क्वेश्चन, डोंट यू, दैट्स व्हाई। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इजंट इट? बाहर बारिश हो रही है, क्या नहीं? टीचर डू नॉट अर्न बिग अमाउंट ऑफ मनी, डू दे? टीचर्स ज्यादा पैसा नहीं कमाते, क्या नहीं? इस तरीके से डू दे ये असल में टैग क्वेश्चन है। थर्ड है ही हैज नेवर बीन टू एशिया, हैजंट ही? ये हैजंट ही जो है ये टैग क्वेश्चन है। यू डोंट थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल, डू यू? क्या तुम नहीं समझते कि मैं जिम्मेदार हूं? जब हम अपनी जुबान में भी इस तरह, आपने कई बार देखा होगा, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इस तरह के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, they are very important type of questions. And an indirect question always ends in a full stop. This type of question states what has been asked rather than directly asking a question. It doesn't repeat the speaker's exact word and usually doesn't require an answer. Indirect question never ends in a question mark. अब इन तमाम सवालों को देखें आप। He asked me if I knew where the child was. एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ एक तरह का जुमला होता है जिसके बदले में जो स्पीकर होता है वो आपसे जवाब का तलबगार भी नहीं होता। शी आस्क्ड वेदर आई लाइक कॉफी, ही इज आस्किंग हु शी इज। जैसे हम खड़े खड़े किसी से कहते हैं कि वो पूछ रहा है कि फला कौन है, तो आप इसके लिए क्या जरूरी होता है उससे, क्योंकि वो शख्स तो है ही नहीं, लाइक दैट। आई वंडर वेयर आई कैन सिट, मैं हैरान हूं मैं कहाँ बैठूं। लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको वाजे करूं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या फर्क आ जाएगा। आई वंडर वेयर कैन आई सिट, यहाँ इनडायरेक्ट जो हमने लिखा है, अगर हम आई से पहले कैन ले आए तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यानी आप किसी से पूछ रहे हैं मैं हैरान हूं मैं कहाँ बैठूं, लेकिन यहाँ आप सिर्फ एक बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आई वंडर वेदर एना इज हैप्पी, मैं हैरान हूं कि एना खुश है। प्लीज फाइंड आउट व्हाट टाइम द ट्रेन इज ड्यू, मेहरबानी करके पता करें कि ट्रेन कब आने वाली है। अब ये एक सिंपली स्टेटमेंट है, आप जैसे किसी से हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन है सवालिया तरीके से, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अब हम इसे डायरेक्ट में किस तरीके से, आप कैसे फर्क कर सकते हैं इसमें? अगर व्हाट टाइम के बाद इज होता और फिर होता द ट्रेन ड्यू, तो आप समझ जाते कि इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन और आप इसमें साइन पुट करते, क्वेश्चन मार्क पुट करते। लेकिन आप ये देखिए इनमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये स्टेटमेंट है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डज एनीवन नो इफ लैम्बोर्गिनी मेक्स व्हीलचेयर व्हीकल्स, किसी को पता है कि अगर लैम्बोर्गिनी वाले व्हीलचेयर भी बनाते हों? आई एम आस्किंग वेयर यू आर गोइंग, मैं पूछ रहा हूं तुम कहाँ जा रहे हो।
Please watch, like, comment, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.